Ladies and gentlemen, very delighted to be here. Indeed, I feel very honored and very privileged to be having this opportunity to be heading India's most eminent university. I don't need to tell you anything about the university. You know this 100 times better than I do, but it is certainly a very, very special privilege for me to be here. Now, before I start to talk about what I think about BHU, let me tell you a little bit about my own journey, where I went and how I reached here and what shaped my thinking. I'm a small town boy, lived in very, very small towns of UP, went to perhaps 6 or 7 schools up to class 12. My father was transferred every year or 2 years. Went to Roorkee, which was a 2000 student college, studied there. Didn't know enough English. When I appeared for my visa interview at American Embassy, I couldn't understand half of the questions that she was asking. Never watched English movies, had very poor English. I did hear word congratulations, which meant that she was going to give me this visa. Went to Caltech. That was the only university I had applied to because I did not have my TOEFL, I did not have my GRE. And Caltech was the only university amongst better universities that would not ask $30 or $25 of application fee at the time. I did not have wealth to support $25 type of fee. I went to Caltech. I was a very odd man out because practically every year 4, 5 or 6 students would come from India. All of them would be IITians. I was the only non-IITian there. And I had a big handicap, did not know English. I had no idea about the English movies and about the English novels. So, finished my master's, finished my PhD, never thought about staying in the United States, wanted to come back to India. Wrote for jobs. In those days, the bureaucracies were very simple. I just wrote a letter and attached a 3-page resume. And I sent it to all the IITs, ISC Bangalore, Birla Institute. I wrote it to many, many companies. I wanted to come to India. I wanted to be a teacher. When I went to Roorkee at the age of 16, we used to have ragging at the time. And I used to be asked, "Kya karoge?" And at the age of 16, I said, structural engineering mein PhD karke Roorkee mein padhayenge. That was the mission in life at the age of 16. When I went to look for job, I was very clear I only wanted to work at Roorkee, nowhere else. But one never knows. As a structural engineer, we work with safety margin. We don't want this roof to collapse. So we keep some safety margins. So I had to apply to many places, knowing fully well that Roorkee jana hai. I have a very dear friend who is a BHU graduate, whose father was a BHU professor, who was at Caltech, and he said, तुमको रुड़की से इतनी मोहब्बत है तुम रुड़की नहीं जाओगे ऐसा मुझे लगता है. And I hated him for saying that. How could he do that to me? How could he? And it turned out to be true because I came back to India. I had a job offer from Roorkee. I had a job offer from Kanpur, Bombay, Madras, ISC Bangalore. I gave my joining report to my head of the department at Roorkee and said, "Sir, 1 महीने का छुट्टी चाहिए." सर तो अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दिया, 1 महीने की छुट्टी क्यों चाहिए? आई सर वो सारी जॉब ऑफर है ना, सब देश में घूम के देखना चाहता हूँ हिंदुस्तान का माहौल क्या है. तो ही रिटर्न बैक माय ज्वाइनिंग रिपोर्ट. ही सर पहले घूम के आओ उसके बाद ज्वाइन करो. आई कांट गिव यू छुट्टी फॉर 1 month व्हेन यू हैव जॉइन्ड टुडे. आई सर ऑल राइट आई विल डू इट, बट आप मेरी नौकरी तो नहीं ले लोगे 1 महीने में क्योंकि वो एक्सपायरी थी कुछ उसकी. ही सर नहीं, डोंट वरी, नौकरी रहेगी. सो आई वेंट टू भारत दर्शन and I fell in love with Kanpur IIT. Right? It was an American environment where a young faculty could speak, young people were encouraged, and the whole atmosphere was very, very collegial. Compared to Roorkee, which was a British, old, very British system where, you know, you have to get up when senior person comes into the room. So I ended up staying at Kanpur. My subject, as you heard, was earthquake engineering. कभी सोचा नहीं था कि कोई अवार्ड मिलेगा, कभी सोचा नहीं था कुछ चाहिए लाइफ में. बस एक जुनून हो गया कि इंडिया में लोग अर्थक्वेक में क्यों मरते हैं. और उस जुनून को 25 साल तक चेज किया.
Accidentally, from time to time, I will be asked to do some administration. I was asked to be placement chairman, I was asked to be continuing education, I was asked to be head, I was asked to be dean. ये सब किया, लेकिन पैशन अर्थक्वेक सेफ्टी था. हिंदुस्तान में लोगों को मरना नहीं है अर्थक्वेक में, बस यही था. उसके बाद 8 नई IIT का एडवर्टाइजमेंट निकला. हमको बोला गया अपना बायोडाटा दो भेजते हैं. हमने कहा भाई नहीं, हमें नहीं चाहिए. Let me think. So one of my mentor in United States, I wrote to him and he said मैं तो दिल्ली में हूँ आजकल. मैंने कहा चलो मैं दिल्ली आता हूँ मिलने. मैं उससे दिल्ली मिलने गया. कैफे कॉफी डे में 3 घंटे हमने कॉफी पी, कई कॉफी पी, और मैंने अपनी जिंदगी की सारी बातें उसको बताई, जो नहीं बताने वाली थी वो भी और जो बताने वाली थी वो भी. मैंने कहा समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे नई IIT के बारे में बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये मेरा पैशन नहीं है. वो हंसने लगे, बोले मैं अपनी जिंदगी में कुछ उसूल फॉलो करता हूँ, आज अपना एक उसूल तोड़ रहा हूँ आपके लिए. बताओ. मैं कभी एडवाइस नहीं देता, आज आपको एडवाइस दे रहा हूँ. मैंने कहा बताइए. बोले यार तुम तो नई IIT के आदमी हो, तुम पुरानी IIT में फेल हो जाओगे. He said why? He said you are not a systems person, you are a creative person and new IIT will give you the platform to do it. Go. हमने इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू के बाद हमसे पूछा गया मंत्री जी के सामने सिलेक्शन कमेटी में 8 IIT हैं, कौन कौन सी IIT प्रायोरिटीज में हैं. हमने कहा हिंदी में मंत्री जी अगर अहमदाबाद भेजेंगे तो चला जाऊंगा, वरना कानपुर में बहुत खुश हूं. सेक्रेटरी वाज सरप्राइज्ड. ही सेड यू मीन टू से कि if we cannot accommodate you in new IIT at Gujarat, other 7 IITs you are not willing to go as a director. I said yes sir, thank you very much. I came out. मंत्री जी का एक जॉइंट सेक्रेटरी था जम्मू कश्मीर कैडर का, वो मेरे पीछे पीछे आया, बोला मेरे साथ कॉफी पियेंगे. मैंने कहा यार कॉफी पिलाओ, मंत्रालय में कॉफी बढ़िया मिलती. तो उसके ऑफिस में गए. बोले ये गांधीनगर में ऐसी क्या स्पेशल चीज है कि आप गांधीनगर जाना चाहते हो? Why not 7 other IITs? After 2001 earthquake, I had started to go to Gujarat. I used to go 4 to 5 times every year, sometimes 6 times a year. And I developed confidence in Gujarati ecosystem that they don't mess up with your business. They let you do your work and they're busy in their own work. I said देखिए अगर earthquake इंजीनियरिंग छोड़कर कहीं जाना है तो अपनी टर्म्स पर जाना है. गुजरात से अच्छी कोई जगह नहीं है जहां पर मैं काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं गुजरात हूं. सो भारत सरकार ने हमको कहा IIT गांधी चले जाओ. चले गए. 2 छोटी अटैची लेकर के 2 कमरे का गेस्ट हाउस था एक, उसमें उन्होंने रात को 2 बजे पहुंचे, खोल दिया. और हमने सोचा था 1-2 साल में निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि काम करने का तरीका हमारा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था. उस मकान में 5.5 साल रहे. 8,000 रुपये का किराया था उसका, ठीक है ना. अपार्टमेंट था 2 बेडरूम का, वो गेस्ट हाउस था. एक बार फादर आए हुए थे तो फादर से हमने शर्माते हुए कहा, एम्बेरस होके कहा, उन्हें लगा कि ये बेटा कैसा पूत पैदा किया है, इतने छोटे मकान में रह रहा है, नाक कटाएगा. तो मैंने उनसे कहा कि मैंने स्टाफ से बोला है एक डायरेक्टर के लिए कोई बंगला किराए पर ढूंढे. बोले तुमको सोना ही तो होता है, क्या करते हो? 6 फुट बाई 6 फुट का बेड काफी नहीं है तुम्हारे लिए? I said settled. If father is not complaining, I cannot complain. 5 साल IIT का निर्णय चलाया. उसके बाद 5 साल फिर मिले. 10 साल के बाद वापस IIT कानपुर ज्वाइन कर लिया. कभी किसी से मैंने नहीं कहा मुझे 3rd टर्म चाहिए. मुझको किसी ने नहीं कहा कि आपको 3rd टर्म मिलने की कोई भी संभावना है. 1-1.5 महीने के बाद एक चिट्ठी आ गई कि आपको वापस गांधीनगर वापस जाना है. हम पहुंच गए फिर से वापस. जब मैं बनारस के लिए नाम आया तो मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया. बोले भाई आपने ये कहानी बताई थी कि आप स्टार्टअप के आदमी हैं, आपको अजीत गिल ने एडवाइस किया था कि पुरानी IIT में तो आप फेल हो जाएंगे, नई IIT आपकी है और आप नई पुरानी IIT नहीं उसके भी बहुत बड़े समुद्र में जा रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो वहाँ तो आप बिल्कुल ही फेल हो जाएंगे. मैंने कहा भाई मैं तो गांधीनगर भी फेल होने के लिए आया था और BHU भी फेल हो सकता हूँ. स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, कोशिश करूँगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ काम करने की. लेकिन सारी जिंदगी मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि यू हैव टू लर्न, you have to keep learning. Anything I teach you today will become obsolete in 5 years time, 10 years time. So if I can teach you to learn and if you can keep learning yourself, then you are fine.
आज सिर्फ मेरा मौका आया है अपनी उस बात को सिद्ध करने का, तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो एटीट्यूड से जाऊंगा कि मुझे सीखना है, मैं ह्यूमिलिटी के साथ जाऊंगा और ये मान के जाऊंगा कि मैं सफल भी हो सकता हूं और असफल भी हो सकता हूं, दोनों मत हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को काफी चिंता हुई कि मैं काफी देर से आया ज्वाइन करने के लिए, तैयारी कर रहा था, एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, एग्जाम की तैयारी कर रहा था। एक टेक्निकलिटी भी थी, 3 महीने का यहाँ पर बनारस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखवाया मुझसे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। गांधीनगर में कॉन्ट्रैक्ट होता है, आईटी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। मुझे 3 महीने का नोटिस देना था, तो मैंने कहा चलो राष्ट्रपति भवन तक जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट को वेव करने का, तो मैंने कहा चलो 3 महीने तो यहीं 1.5 महीना मांग लेते हैं। तो 1.5 महीने हमने मांगा, राष्ट्रपति जी ने अप्रूव कर दिया और 6 तारीख को हम यहाँ पहुंच गए, 7 तारीख को ज्वाइन किया जनवरी में। तो ये मोटी मोटी कहानी है। आप में से काफी लोग आईटी से वाकिफ हैं, फिर भी लेट मी जस्ट टेक ए फ्यू मोर मिनट्स अबाउट आईटी सिस्टम बिफोर आई कम टू बीएचयू। लोग पूछते हैं कि आईटी इतना एमिनेंस में क्यों आया, आईटी क्यों सब लोग जाना चाहते हैं, टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी, क्या चीज है आईटी में? मेरे ख्याल आईटी में 2 चीजें हैं। वो कैसे डेवलप हुई, एक तो बड़ी स्पष्ट है कैसे डेवलप हुई, एक क्लियर नहीं है मुझे कैसे स्पष्ट हुई, कैसे डेवलप हुई। एक तो है ऑटोनॉमी। जो आईटी का एक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उसमें बहुत ऑटोनॉमी दी है जो यूजीसी में सिस्टम में नहीं है। आईटी को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे ग्रेड देने हैं, क्या ग्रेड देने हैं, 10 पॉइंट सीपीआई करना है, 5 पॉइंट करना है, एबीसी ग्रेड देना है कि A-B+ देना है। इनफैक्ट हर आईटी का ग्रेडिंग सिस्टम अलग है, प्रैक्टिकली काफी आईटी का फर्क है। सो वहां की जो टीचर्स होते हैं वो मिलकर तय कर लेते हैं क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहानी खत्म। नो सर्कुलर्स कम फ्रॉम दिल्ली हाउ टू डू दिस और दैट। स्टैट्यूट जिस तरह से लिखे हैं, एक्ट जिस तरह से लिखा है, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है रिक्रूटमेंट की। सो ऑटोनॉमी बहुत है। दूसरी, ये तो उस समय के जिन लोगों ने आईटी का एक्ट बनाया वो काफी एनलाइटेंड रहे होंगे और उनकी काफी स्पष्ट थिंकिंग रही होगी कि अच्छे इंस्टीट्यूशन कैसे बनते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो मुझे कभी समझ में नहीं आई कि कैसे हुआ इस देश में, वो है इंटीग्रिटी। एडमिशन में कोई फेवर नहीं होगा, मंत्री का बच्चा है, ऑफिसर का बच्चा है, इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा है, आईटी के डायरेक्टर का बच्चा है। बहुत सारे आईटी के डायरेक्टर्स के बच्चे आईटी में एडमिशन में जेईई में कभी नहीं क्लियर करते। रिक्रूटमेंट में कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई दबाव नहीं होगा। एक बार मंत्री जी आए आईटी गांधीनगर में, इंटरव्यू एक मीटिंग हो रही थी फैकल्टी के साथ, सबसे इंट्रोडक्शन पूछ रहे थे। तो किसी ने कहा मैं मिशिगन में था, किसी ने कहा मैं मैरीलैंड में था, किसी ने कहा कॉर्नेल में था। तो सरप्राइज हो रहे थे, बोले लोग कहते हैं विदेश से लोग नहीं आते, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तो किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ जवाब दिया। तो सेक्रेटरी बाद में बने मिस्टर सुब्रमण्यम, उस समय एडिशनल सेक्रेटरी थे, बोले ये सब इसलिए आए हैं क्योंकि आईटी का में वो सिस्टम फॉलो नहीं होता जो सब जगह होता है, राइट, रिक्रूटमेंट का। और मंत्री जी ने कहा कि मुझको कभी आईटी के लिए दबाव नहीं आता कि सिफारिश कर दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आता है। मुझसे कभी कोई नहीं कहता कि आईटी में फैकल्टी लगवा दो मुझको, ये मंत्री जी ने कहा। तो एक जो बहुत बड़ी चीज आईटी में हुई वो ये हुई, पता नहीं कैसे हुई, कि एक इंटीग्रिटी एस्टैब्लिश हो गई एडमिशन में, रिक्रूटमेंट में, प्रोक्योरमेंट में। कभी सुना नहीं मैंने कि किसी प्रोफेसर ने पैसे खाए प्रोक्योरमेंट करने के लिए। कभी सुना नहीं मैंने कि किसी टीचर ने किसी वेंडर को लाभ दिलाने की कोशिश की हो। मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ के कंस्ट्रक्शन में कभी किसी इंजीनियर ने पैसे लिए हो, नहीं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन कभी मैंने किसी डायरेक्टर, किसी डिप्टी डायरेक्टर, किसी डीन, किसी हेड प्रोफेसर के बारे में कभी सुना नहीं मैंने, किसी भी आईटी के बारे में सुना। बहुत बड़ी बात है। तो ये हुई आईटी। उसके बाद जब आईटी गांधीनगर पहुंचे तो सोचा कि सारी आईटी तो एक सी हो जाएंगी, 15 आईटी उस समय हो गई थी, तो वी हैव टू बी डिफरेंट। तो पहला तो ये काम किया कि वहां पर ये 2 चीजें हैं, ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी, इनको स्केल अप करना है। तो जो आईटी में थोड़ी बहुत टॉलरेंस थी इंटीग्रिटी के इशू में, वो 0 कर। आज आईटी गांधीनगर में साल में 5, 7, 10 ईमेल आती हैं, मैं दिखा सकता हूं
जैसे बोलेगा 2000 रुपए का नोट क्लासरूम में मिला, जिसका हो वो सिक्योरिटी गार्ड से जाकर ले ले, सिक्योरिटी गार्ड से जाकर ले ले, ठीक है ना। एक सेल फोन मिला, लैपटॉप मिला तो बहुत कॉमन है, बट कैश कितनी बार ईमेल आती है, राइट। हमारे हॉस्टल्स में लड़के लड़कियों पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी शिकायत नहीं आती कि लड़कों ने बदतमीजी की हो लड़कियों के साथ, कोई अभद्र भाषा यूज की, कभी नहीं है, ठीक है ना। तो पहला तो ये था कि इंटीग्रिटी और ऑटोनॉमी को स्केल अप करना है। हमारे स्टूडेंट्स उनको ऑटोनॉमी देनी है। ऑटोनॉमी खाली डायरेक्टर के लिए नहीं है, वाइस चांसलर की नहीं है, सारी नीचे तक जानी चाहिए। और हमने स्टूडेंट से कहा कि आपको तब तक मैं ऑटोनॉमी देता रहूंगा जब तक आप उसको ठीक से यूज करोगे, जिस दिन आपने गलत यूज किया मैं वापस लेना शुरू करूंगा। आज हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी में, हमारी नहीं कहूंगा उनकी आज आईटी अकादमी की डिसिप्लिनरी कमेटी में 6 टीचर्स और 4 स्टूडेंट्स होते हैं। जब मैंने पहली बार कमेटी बनाई तो शिकायत आई कि साहब टीचर्स ने कहा कि आप तो वोटिंग मेंबर नहीं है, क्योंकि टीचर्स तो पुराने माइंडसेट के थे। हमने कहा नहीं, आप वोटिंग मेंबर हैं। और अब माहौल यह है कि अगर इनडिसिप्लिन होगा तो 4 स्टूडेंट ज्यादा सख्त होंगे, टीचर्स लीनियंट होंगे, क्योंकि स्टूडेंट से बोलेंगे कि हम पर इतना विश्वास किया गया है, स्टूडेंट ने हमारा विश्वास तोड़ा है, ये हमारी पोजीशन खराब कर रहा है, इसने बेईमानी की है, 1 सेमेस्टर के लिए बाहर जाना है, 2 सेमेस्टर के लिए बाहर जाना है। एक कम्युनिटी बिल्ड की, यंग फैकल्टी को काम पे लगाया, फुल प्रोफेसर मिलते नहीं थे, असिस्टेंट प्रोफेसर डीन बने, कैंपस कंस्ट्रक्शन का डीन असिस्टेंट प्रोफेसर, डीलिंग विद सीपीडब्ल्यूडी, डीलिंग विद इंजीनियर्स, डीन ऑफ स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। इस सब का एक एक्सट्रीम एग्जांपल हुआ जब कोरोना आया। वी वर द ओनली आईआईटी दैट नेवर क्लोज्ड द हॉस्टल, वी नेवर आस्क्ड ए सिंगल स्टूडेंट टू गो होम। We treated 150 students during second wave in the campus for corona. 150 students, right? And we received tremendous goodwill from the parents saying कि आपने जिस तरह से हमारे बच्चे का ख्याल किया कोई नहीं कर सकता था, हम नहीं कर सकते थे। ये कम्युनिटी बिल्डअप की। और आज ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि this explains what I think about what a university should be, what a educational institution should be. हमारे जिन मित्र ने काफी हमको धमकाया कि तुम बीएचयू जाके फेल हो जाओगे, तो उन्होंने कैसे करोगे बताओ। तो हमने कहा भाई देखो, हमारे हिसाब से किसी भी विद्यालय को, विश्वविद्यालय को, कॉलेज को, छोटा कॉलेज बड़ा कॉलेज, छोटा स्कूल बड़ा स्कूल, डजंट मैटर, उसको आगे बढ़ाने के सिर्फ 3 ही मंत्र हैं, और वो तीनों मंत्र कॉमन है। वो मंत्र चेंज नहीं होते, डिटेल चेंज होती है। पहला मंत्र है टैलेंट। आपको अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर्स, अच्छा स्टाफ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी गार्ड, इंक्लूडिंग सफाई वाला, आपको अच्छे टैलेंट को लाना है और नर्चर करना है, सपोर्ट करना है, एनकरेज करना है। टैलेंट मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, एनकरेजमेंट ऑफ टैलेंट। सेकेंड इज वो टैलेंट आ गया, उसको रिसोर्सेज देने। एक बहुत बढ़िया केमिस्ट आप ले आए, उसको लैब नहीं दी तो क्या फायदा है। एक सोशियोलॉजी का बहुत बढ़िया असिस्टेंट प्रोफेसर आ गया, लेकिन आपने उसको फील्ड वर्क नहीं करने दिया तो क्या फायदा है। रिसोर्सेज देने हैं, लैब्स, क्लासरूम्स, ऑफिस स्पेस, ट्रैवल मनी, मनी टू इनवाइट स्कॉलर्स, रिसोर्सेज देने हैं। और आपने दोनों दे दिए, लेकिन उसके बाद आपको सेंट्रल ऑफिस दौड़ना पड़ेगा, नहीं चलेगा। आपको कल्चर बनानी है, आपको एथिक्स डेवलप करना है, आपको बेईमानी, सिफारिश, फेवरेटिज्म, पावर गेम्स, ग्रुपिज्म, कास्ट सिस्टम, इन सबको दूर रखना है। एक एस्पिरेशन बनानी है, एक एम्बिशन बनानी है, और एक माहौल बनाना है। ये 3 चीजें आप स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, वो तीनों कॉमन है। वो रेसिपी में कोई चेंज नहीं है। अरहर की दाल में अरहर तो डालोगे ही, अब उसमें थोड़ा बहुत टमाटर डाल करके उसका टेस्ट बदल सकते हो। दाल तो अरहर की ऐसी ही बनेगी, अरहर से ही बनेगी। सवाल यह है कि हम कौन हैं। वी आर ए कॉलेज,
We are a university. We are here for the students. IIT गांधीनगर के 3 सिद्धांत हमने तय किए. हर भाषण में वो 3 सिद्धांत बार बार रिपीट किए. धीरे धीरे हमारे ड्राइवर को भी याद हो गए. वो आपने कहानी सुनी है ना कि वो फिजिक्स का प्रोफेसर था, उसका ड्राइवर इतना होशियार हो गया कि प्रोफेसर पीछे बैठ गया, ड्राइवर ने लेक्चर दे दिया, बिकॉज वही लेक्चर बार बार देता था. 3 प्रिंसिपल क्या थे? पहला था स्टूडेंट्स फर्स्ट. वी आर हियर फॉर द स्टूडेंट्स. Students are not for us. We have to put all our energy for the students. Second is research for impact. Research that makes a difference, not research that is published. Research is not for publication. Research is for making a difference. Research is for making society better, community better, economy better, remove poverty, remove misery, remove unhappiness. And third is पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन है, टैक्स पेयर का पैसा ले रहे हो, उस पैसे से प्राइमरी स्कूल चल सकते हैं, उस पैसे से हॉस्पिटल अच्छे चल सकते हैं. सोसाइटल कंसर्न्स. आपका स्टूडेंट बाहर निकले तो सोसाइटी के लिए सेंसिटिव होना चाहिए. वो किसी कॉर्पोरेट में काम करेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनेगा, सोशल वर्कर बनेगा, डजंट मैटर, बट उसके दिल में गरीब आदमी के लिए, कमजोर आदमी के लिए, बीमार आदमी के लिए दर्द होना चाहिए और इच्छा होनी चाहिए कि हम उनके लिए कुछ कर पाएं. ये जो छात्र या छात्रा है, इसको हम क्यों बुलाते हैं कॉलेज में? फिजिक्स पढ़ाने के लिए, सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए. मेरा ख्याल है एक बड़ा उद्देश्य है, और उद्देश्य है कि उस छात्र या छात्रा में एक एस्पिरेशन पैदा करें कि हम समाज के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाए. एक एम्बिशन होनी चाहिए, एक एस्पिरेशन होनी चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए. और ये एस्पिरेशन और मोटिवेशन को पूरा करने के लिए कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए. ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के लिए फिजिक्स चाहिए. अगर आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और आपने एग्रीकल्चर की क्लास ही नहीं पढ़ी तो आप कैसे काम करोगे? नहीं कर पाओगे. एग्रीकल्चर साइंस तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन खाली एग्रीकल्चर साइंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा. मैंने बहुत अर्ली एक बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिक्रूट करना था आईआईटी गांधीनगर के लिए. 15-20 कैंडिडेट थे. सिलेक्शन कमेटी के लोगों से कहा आप लोग पहले इंटरव्यू कर लो, 4-5 टॉप कैंडिडेट्स मुझे दे देना, फिर मैं इंटरव्यू करूंगा. बोले ठीक है. तो मॉर्निंग में उन्होंने 15-20 कैंडिडेट्स किए, 5 लोगों का मेरिट लिस्ट बना के मुझे दे दिया. उसके बाद मैं बैठ गया उनके साथ बात करने. कोई मेरी सिलेक्शन कमेटी वाले लोग बैठे हैं और मैं 5 लोगों को इंटरव्यू कर रहा हूँ. इस बार वो लोग शांत हैं, मैं बोल रहा हूँ. इंटरव्यू करने के बाद मैंने कहा बताइए. बोले साहब सिलेक्शन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी 1 2 3 4 5 उल्टी हो गई है, क्योंकि हम तो देख रहे थे इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज्यादा जाती है और आप पूछ रहे थे कि रिश्वत कैसे लोगे. बिकॉज मेरा कंसर्न था कि अगर कोई अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आएगा और पैसे खाएगा तो मेरे लिए बेकार है. अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आएगा सबसे लड़ेगा, मेरे लिए बेकार है. अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आएगा और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, प्रेशर में आ जाएगा, तो बेकार है. तो व्हाट वाज आई लुकिंग फॉर? आई वाज लुकिंग फॉर एथिक्स, आई वाज लुकिंग फॉर एटीट्यूड, आई वाज लुकिंग फॉर लाइफ स्किल्स, एंड आई वाज लुकिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज द लास्ट आइटम. For all my recruitment, I have always looked at values and ethics as first, attitude as second, and life skills as third, and subject knowledge as the last. Right? Whether I am hiring an accounts officer, whether I am hiring an engineer, whether I am hiring an assistant registrar, it doesn't matter. Right? So, coming back to what do we prepare our students for? We prepare the students for aspiration, which we have to build in somehow in them. Give them motivation, give them capability. Capability includes values, attitude, life skills, and the subject. Not only the subject. हमने 2-1 साल पहले कहा कि आईआईटी गांधीनगर में कोई भी एमएससी, एमटेक, पीएचडी स्टूडेंट ग्रेजुएट नहीं होगा अगर 2 साल तक वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, दौड़ेगा नहीं. मेरी जैसा बॉडी निकलेगा तो बेकार है, लाइफ बेकार है.
हाँ, अभय ठाकुर हमारे फाइनेंस ऑफिसर हैं, जैसा फिट चाहिए। तो हमारे एक यंग फैकल्टी ने कहा साहब वो तो पढ़ना है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, हमें क्या लेना देना है, पढ़ना चाहे तो स्पोर्ट्स में जाना चाहे जाए, हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। हम इसलिए जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि हम उसको फ्रीडम देंगे वहां तक जहां तक वो फ्रीडम को ठीक से यूज करेगा। जिस दिन उसने अपनी फ्रीडम को गलत यूज किया उस दिन उसकी फ्रीडम बंद। अगर मैं स्पोर्ट्स को वॉलंटरी करके पिछले 5 साल से कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देख रहा हूं तो नाउ आई हैव टू हैमर इट। And we went ahead and we imposed physical activity on every student. We will not give you a degree if you are not in the playground for so many days in a semester. There is biometric attendance, no choice. We did that. What I'm trying to say here is that we have to think about a holistic development of the student, make him a good human being, not just a good graduate of medicine or law or agriculture or arts or Sanskrit or whatever that is. And I think that is absolutely what Mahamana wanted. That is what was the vision of this university. I'm not so sure how many universities can claim the kind of vision that this university was built on, which was on a holistic development of a student. Today, in new education policy, so many things are written. Almost all of them you can trace back to 105 years back in BHU. Interdisciplinarity, right? How many universities have Ayurveda and medical science together? How many of them have music and performing arts together with physics and mathematics? How many universities had the kind of emphasis on the overall development of the student, physical, emotional, and otherwise? How many universities in India have thought through that a student's education should be a combination of East and the West, the best of India and the best of the West? This is exactly what BHU was all about. And this is what now National Education Policy is saying in one form or the other. Bhasha can be different. Sense is the same. So here we are, where we are on a very, very privileged university which is focused on, or was supposed to be, or is meant to give a holistic education to the student. Where tradition goes with modernity, where religion goes with rationale, where East goes with the West. Now, when I look at Banaras Hindu University, what are its strengths? You know, many of you have heard this term SWOT analysis. Strength, weaknesses, opportunities, and threats. What are the strengths that I see in BHU? Okay, and please feel free to send me an email if I missed some important strengths that I'm listing. And I say my own perception of SWOT with certain humility that I've been here only for 5 months, slightly less than 5 months. And I may have missed some important points, and I may be somewhat harsh in some respects. So please feel free to correct me, send me an email if I missed some important thing. So in my list of strengths is diversity of disciplines and fields. Not many universities anywhere in the world, forget India, would have the kind of diversity that we have here. Arts, fine arts, performing arts. Size and numbers. Size can be a huge, huge advantage. Quality faculty, all said and done, BHU has a fantastic quality of faculty is what I'm finding, right? We have a decent campus and infrastructure. I would use the word decent. I would not call it outstanding, but it is decent. We have very fine schools. Again, there is an advantage in having a school run by the university. And the South Campus, 2,700-acre campus, it's a huge asset, it's a huge strength. If we only become more creative, we can really take advantage of the RGSC campus in a very, very constructive way. What are the weaknesses that I see? Very weak administrative structures. Very weak administrative structures, right? Left hand doesn't know what right hand is doing, right? The paper goes but doesn't know when it is supposed to come back and report on duty, the paper. So the file may come back to you after 1 month, after 3 months, after 6 months. We don't know when it will come back, right? Anything to be done can be very tedious.
Very early January, I saw one of two professors had gone to Delhi for a meeting approved by the Vice Chancellor. Approved by the Vice Chancellor. Their TA bill had to be cleared. On ERP, I counted 26 times 26 people had commented before it came to me. I counted. I printed it and I counted and I gave it to the registrar and the finance officer. I said, we need to fix it. Because we are only busy massaging that TA bill. We should be busy massaging our research paper and publish in Nature and Science, right? We should be really good in writing research papers, but we are really good in writing the note sheets. We should change that. Mindset, bureaucratic mindset, not problem-solving mindset. किसी ने गड़बड़ किया उसको चार्जशीट दे दो, उसको बुला के चाय पिलाओ, थोड़ी देर गप्पे मारो, उसको तो टेंडर लविंग केयर दो, TLC डोज दो, समझाओ उसको साथ में लेके आगे चलो, नहीं गोली ठक ठक। ऐसे इकोसिस्टम में अच्छे टैलेंट को लाना भी थोड़ा मुश्किल है और रिटेन करना मुश्किल है, ये वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज में सबसे पहली जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि there are certain disciplines like philosophy, religion, spirituality, music, culture, arts, humanities. These are the disciplines that modern science and engineers will say, ये तो Web of Science में publish नहीं करते paper. But they are the real scholars who have a chance of bringing BHU the glory. There is not much competition. If you want to study the Jyotish, if you want to study the Vedas, if you want to study the performing arts, you don't have much competition. This is a great opportunity and we should leverage it. We should emphasize it. And our faculty members and students in those disciplines should come forward. Inter and transdisciplinary cooperation. Science वाले agriculture के साथ काम कर रहे हैं, agriculture वाले medicine के साथ काम कर रहे हैं. और आयुर्वेदा वाला मॉडर्न साइंस के साथ काम कर रहे हैं. मैं 5 महीने में कई बार कह चुका हूं, मुझको आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन का साथ चाहिए. हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें कॉमन वाइस चांसलर हो मॉडर्न मेडिसिन का और आयुर्वेदा का, कॉमन फाइनेंस ऑफिसर, कॉमन रजिस्ट्रार. वी कैन डू मैजिक. और आयुर्वेदा कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट if it is brought together with the modern medicine. Our South Campus is a huge opportunity. The alumni base, you know, at IIT Kanpur, during my days at Kanpur, for 3 years I did the alumni relations work. I raised the money. At IIT Kanpur I mobilized alumni. But the kind of alumni I see at BHU, I have not seen anywhere. The kind of commitment, the passion that they have for BHU, for Mahamana. And I think we have a huge opportunity of leveraging those. And finally, we have an opportunity to make BHU shine in the Indian university ecosystem. We certainly have huge advantages that typical Indian universities don't have. We may have all the weaknesses that I listed to you, but they all also have those weaknesses, so no problem. Let's not worry too much about weaknesses. Let's seize the opportunities and let us march ahead and become leaders in the university system. What are our threats? Short में last word है threat. बजट बहुत कम है, पैसे नहीं, पैसे की मर्जी मारा मारी है, वाकई दिक्कत है, राइट? बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो गई, सीवेज सिस्टम काम नहीं कर रहा, बिजली की लाइन टूट जाती है जरा सी आंधी आती है तो, राइट? यूनिवर्सिटी का परसेप्शन बहुत खराब है. अखबार में रोज हाय हाय मुर्दाबाद आएगा. आपने अगर गूगल अलर्ट BHU का लगाया तो उसमें आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे कि एक लड़की को लड़कों ने तंग किया. उससे तो आपको अच्छे लोग नहीं आएंगे, यहां पर अच्छे स्टूडेंट नहीं आएंगे. आपका परसेप्शन कमजोर है, उसको ठीक करना पड़ेगा. जो करंट परसेप्शन है वो हमारे को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता है. वो घटना छोटी होगी लेकिन अखबार में इतनी बड़ी आएगी, और जो आदमी हमसे 5,000 या 10,000 किलोमीटर बैठा है उसको तो बहुत बड़ी लगेगी. मेरे एक दोस्त थे, वो पंजाब में कलेक्टर थे, जब वो पंजाब में उस समय इंसर्जेंसी का टॉप था. कैसे रहते हो? बोले आप जितनी दूर पंजाब से रहते हैं आपको उतना ज्यादा डर लगता है, हम लोग वहां रहते हैं हमें कुछ नहीं होता. राइट? सो
सिचुएशन अच्छी नहीं है लेकिन इतनी खराब नहीं है जितना परसेप्शन है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, परसेप्शन भी खराब है, लेकिन लॉ ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब है। लड़कियां हमारी सेफ नहीं महसूस करती हैं और आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती है बदतमीजी करने की। और हमारे यहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी में झगड़े में क्वांटिटी जीतती हुई दिखाई दे रही है, क्वालिटी जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आज भी मेरे पास कोई कॉलीग आते हैं, वो कहते हैं हमारे 4 वैकेंसी हैं, 4 और रिक्रूट कर दो। मुझसे वो ये नहीं कहते कि मेरे पास 4 बहुत बढ़िया टीचर्स हैं और उनको विदेश जाना है, उनको हवाई जहाज का टिकट दे दो। कोई नहीं कहता। पीपल हैव आस्क्ड मी कि हमारा डिपार्टमेंट है, इसको फैकल्टी बना दो, हमारा फैकल्टी है, इसको इंस्टीट्यूट बना दो, हमारा सेंटर है, इसको डिपार्टमेंट बना दो। हाँ, सेंटर को डिपार्टमेंट बनाओ, सीधे फैकल्टी बना दो और हमारे डिपार्टमेंट को इंस्टीट्यूट बना दो। वो सब तो है। कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, वो भी है। कमरे में एसी की काफी शिकायतें आजकल आ रही हैं, वो भी है। लेकिन हमारे यंग फैकल्टी को कैलिफोर्निया में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत मुश्किल से पेपर छपता है, उसमें उसका पेपर एक्सेप्ट हुआ है। प्रोफेसर जैन, यू हैव टू गिव मी 1.5 लाख रुपीज फॉर सेंडिंग दिस यंग बॉय टू अमेरिका, प्लीज गिव मी दैट। नोबडी हैज आस्क्ड मी दैट, राइट? वी नीड टू चेंज दैट। वी नीड टू चेंज आवर प्रायोरिटीज, राइट? ऑल राइट, सो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अभी तक क्या किया, 5 महीने में क्या किया? हिसाब किताब तो मिलना चाहिए। कोशिश की कि सिंपल हो जाए सिस्टम, आसान नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, चल रहा है। और कोई भी व्यक्ति परेशान होता है तो मैं कहता हूं भाई सीधे मुझे ईमेल कर दिया करो, और मैं अपने स्टाफ को लगा देता हूं, भैया इसका पेंशन रुका हुआ है, इसका ग्रेच्युटी रुका हुआ है, इसका एलटीसी रुका हुआ है, आई ट्राई, ठीक है ना। बट सिस्टम में अभी मैं नहीं कह सकता कि मैं सेटिस्फाइड हूं, बट कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम सिंपल हो जाए, वेयर फैकल्टी को दौड़ना नहीं पड़े, वेयर फैकल्टी को सेंट्रल ऑफिस ना आना पड़े, ठीक है ना। और क्या किया? कोशिश की कि कहीं पर भी कोई भी अपॉइंटमेंट करना है निष्ठा और ईमानदारी से किया जाए, किसी के साथ फेवर ना किया जाए, किसी भी पक्ष में ना किया जाए, किसी भी ग्रुप से ना किया जाए। वो किस जात का है, किस ग्रुप का है, किस रीजन का है, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं रखा। अभी तक जितने भी अपॉइंटमेंट किए सब अपने विवेक से, ईमानदारी से, बिना राग, बिना द्वेष, बिना भय, बिना लालच के कोशिश कर रहे हैं कि फैकल्टी का, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में बने और बना रहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं गुजरात में 12.5 साल रहा। एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर मेरे पास अक्सर चाय पीने आ जाते थे, दोस्ती हो गई थी। कभी कभी ऑफिस में फोन कर देते थे, मैं आज कॉफी पीने आ रहा हूं जैन साहब। हमारे यहाँ कॉफी अच्छी मिलती थी, कैफे कॉफी डे की मशीन लगवाई थी, तो आते थे, गपशप मारते थे, चले जाते थे। उन्होंने मेरे 12.5 साल में कभी नहीं कहा कि कुछ कर दो। यहां आने के बाद कहा मेरे ये 2 मित्र हैं, इनको मकान दे दो। मैसेज आ गया। एक आईएएस ऑफिसर है गुजरात में जिन्होंने अगेन कभी कुछ नहीं कहा, घर भी आए एक बार, ऑफिस में तो अक्सर आते थे, कभी नहीं कुछ कहा। यहां आने के बाद कहा नौकरी दे दो, ठीक है ना। तो सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि यहां का जो फैकल्टी मेंबर है वो गुजरात में पुलिस ऑफिसर से कह रहा है जैन साहब से आपकी दोस्ती है तो मेरे को मकान दिला दो, क्योंकि मेरिट पर तो मकान नहीं मिलेगा, ऐसा लोगों का मानना है। और हम कोशिश कर रहे हैं इसको चेंज करने की। जब मैंने टेक ओवर किया तो मुझे बताया गया कि ऐसे ही चलता है। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आउट ऑफ टर्न अपॉइंट मकान देना है तो वाइस चांसलर देगा, लेकिन फिर हाथ से पूरा लिखेगा कि मैं क्यों दे रहा हूं। ऐसा नहीं होगा कि वाइस चांसलर ने ओरली मुंह से कह दिया दे दो और वो दे देगा, वो नहीं चलेगा। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा मेरे लिए है कि क्या मैं अपने विश्वविद्यालय के छात्र और टीचर्स का ट्रस्ट रीगेन कर सकता हूं, वेयर लोगों को लगे कि यहां पर सिफारिश, बेईमानी, दबाव, इन सब से काम नहीं होगा। एकेडमिक काफी मुद्दे आए। किसी का पीएचडी का 2 साल का होता है कुछ, वो 2 साल का 3 साल हो गया, किसी का 4 साल हो गया। हम नहीं अप्रूव करेंगे। हमारा सोचना है कि हमारे रूल्स बहुत लिबरल हों, लेकिन एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और उनका एनफोर्समेंट बहुत लीनियंट होता है, तो फिर लोगों की रूल्स के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है, रूल्स के प्रति कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है।
मेरे पास ऐसा कई बार हुआ कि मैंने कोई बात कही और फिर जो बात हमने कही वो हमने इंप्लीमेंट कर दी। तो जिसके ऊपर इंप्लीमेंट किया वो आके बोला बट हमने आपको सीरियसली नहीं लिया। मैं क्या करूं, मैं सीरियसली नहीं लिया तो है ना। हमने कहा भाई हम आपकी प्रोबेशन नहीं क्लियर करेंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हमने नहीं किया। तो हमारे कॉलीग ने तो चिट्ठी लिखी बड़ी अच्छी इंग्लिश में कि मुझे बताया गया था प्रोबेशन क्लैरिटी इज क्लियरिंग द प्रोबेशन इज ओनली अ फॉर्मेलिटी अनलेस आई डू समथिंग ड्रास्टिकली बैड आई विल बी कंफर्म्ड। हमने आपको बोला था, आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, बाकी लोगों की बात सुन रहे हो, मैं क्या करूं। स्टूडेंट्स के साथ कई बार हुआ, टीचर्स के साथ कई बार हुआ। तो मैं जो कह रहा हूं वो मैं आई मीन इट। मकान तो मेरिट पर ही मिलेगा, है ना। एकेडमिक मैटर्स में रूल्स को लिबरलाइज कर लो। प्रोफेसर उपाध्याय बैठेंगे यहां पर, हाँ, आपके पास जितने भी सुझाव हैं प्रोफेसर उपाध्याय को दे दो। एकेडमिक रूल्स जितने आसान करने हैं कर दो, जितना लिबरलाइज करना है लिबरलाइज कर दो। पर जो रूल बन गया उसको हम निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना भेदभाव के फॉलो करें, ऐसा मेरा सोचना है। और इस सब में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप ही के पास स्टूडेंट आता है। और अगर आपके दिल में ही ये बात है कि फोन करने से काम हो जाएगा तो वो स्टूडेंट का डिससेटिस्फेक्शन और बढ़ेगा। पर आप भी उसको बताएंगे कि भाई ये नहीं होता है, बोलेगा नहीं 1 साल पहले हुआ था। आपको बताना पड़ेगा कि वो पुरानी बातें भूल जाओ, नई बातों के पर सोचो। कोशिश की स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एड देने की। हमारे प्रोफेसर सिंह डीन ऑफ स्टूडेंट ने जो है कितने बच्चों को पैसे बांटे? हाँ, 250 स्टूडेंट्स को। साहब ने 250 स्टूडेंट्स को पैसे दिए, करीब बहुत कम पैसे दिए, 12,000 रुपए। बढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट्स को थोड़े पैसे देने की कोशिश की, थोड़ी स्कॉलरशिप रेज करने की कोशिश की। आईओई की स्कीम में कुछ नए इनिशिएटिव शुरू किए। टीच फॉर बीएचयू तो काफ़ी हिट हुआ, उसकी सिलेक्शन कमेटी हो गई है, उसमें हम काफ़ी अच्छे लोगों को सेलेक्ट कर पाए हैं। लेटर आज या कल में निकल जाएंगे। पीएचडी स्टूडेंट्स के कुछ इंसेंटिव्स हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप की गई। राजू साहब हैं इधर? प्रोफेसर राजू, हाँ। सो आज मेरी बात हुई इनसे, बोले 400 स्टूडेंट से ज्यादा एडमिशन करने वाला हूं। लास्ट ईयर कितने हुए थे? 165। अच्छा, तो पीएचडी का स्टूडेंट्स का एडमिशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने नए फैकल्टी से एक स्लाइड्स मांगी थी कि आपको क्या क्या तकलीफ है। जो हमारे पिछले 3 साल में जो नए फैकल्टी 400-450 लोग आए थे, मैं गांधीनगर में बिफोर ज्वाइनिंग हियर मैंने उनसे स्लाइड्स मांगी थी। उस स्लाइड में जो 2-3 बड़े कॉमन मुद्दे थे। एक कॉमन मुद्दा था कि हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत हैसल है, बहुत परेशान हो जाते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट चलाने में, राइट। हर चीज के लिए हमें भागना पड़ता है। तो कोशिश कर रहे हैं उसको सीधा करने की, इसीलिए स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी का एक अलग सेल बना रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आईटी सिस्टम में स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स बड़े स्मूथली हमारे टीचर्स चला पाते हैं, वो हम यहाँ पर भी चला पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। एडवाइजरी कमिटीज का हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि हर डिपार्टमेंट, हर फैकल्टी, हर इंस्टीट्यूट में एक एडवाइजरी कमेटी हो। बाहर के लोग आएँ, हमारे साथ बात करें, देखें और सोचें कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें अभी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की 2 एडवाइजरी कमेटी हो गई हैं। बाकी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाकी डीन्स और हेड्स, डायरेक्टर्स में लगे होंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 6 महीने में सभी डिपार्टमेंट्स की हो जाए। उसके लिए जो फंडिंग की कोई इशू नहीं है, एयर टिकट्स वगैरह हम कर लेंगे उसके। स्पेस ऑडिट कर रहे हैं, स्पेस की भी बड़ी शिकायत आई। वो जो ईमेल आई 450, उसमें स्पेस की बड़ी दिक्कत थी। नए टीचर्स हैं वो कहते हैं हमें लैब के लिए स्पेस नहीं मिला। और जब मैं पूछता हूँ तो हर इंस्टीट्यूशन की ये प्रॉब्लम है। आईआईटी कानपुर में प्रॉब्लम थी और धीरे धीरे आईआईटी कानपुर में बनने लगी थी कि लोगों को कब्जा करने की आदत हो जाती है। उनको लगता है ये स्पेस जो है ना उनके पिताजी ने या दादाजी ने उनको दिया है। और सीनियर टीचर रिटायरमेंट होने से पहले सोचता है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, और वो स्पेस अपने उत्तराधिकारी को देने की कोशिश करता है। ये सब चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। स्पेस जो है वो पब्लिक स्पेस है। वो अगर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं अमेरिका की, तो बताएगा कि केमिस्ट्री की जो लैब है वो केमिस्ट्री की नहीं है। मायाशंकर सिंह जी याद रखिए, जिस दिन वो फैकल्टी रिटायर हुआ वो स्पेस वापस यूनिवर्सिटी को आ गई, और यूनिवर्सिटी वापस केमिस्ट्री को दे दे वो उसकी दरिया दिली है, पर हक नहीं है।
तो जो भी कोई भी स्पेस खाली होगा वो यूनिवर्सिटी को जाएगा और यूनिवर्सिटी वापस उसी डिपार्टमेंट को दे दे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बट ये मानना कि ये तो मेरी ही स्पेस है और मेरा कब्जा है इसके ऊपर, वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए स्पेस कमेटी बनाई है रमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में, और मुझे पता चला है कि काफ़ी डिपार्टमेंट से अच्छा काम हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 6 महीने में इसमें कुछ काम हो जाएगा। एलुमनाई बेस बनाया, करीब 1.25 लाख एलुमनाई के साथ हम लोग संपर्क कर पाए हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे 5,000 भी एलुमनाई नहीं मिले थे। आज हमारे पास 1.25 लाख एलुमनाई हैं। डोनेशन इकट्ठी की, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा की डोनेशन हमें पिछले 2-3 महीने मिली है, जबकि अभी मैं समय नहीं दे पाया इसके ऊपर। मेरे ख्याल से इसके ऊपर अभी और काम करने की जरूरत है। और कैंपस गंदा बहुत है, इसकी बहुत शिकायत है, तो सड़क साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, पर अभी बहुत लंबा रास्ता जाना है। मैं नहीं कह सकता कि हमने कोई उसमें भी सॉलिड काम किया हो। अब आगे क्या काम करना है? सबसे पहला काम है स्टूडेंट एंगेजमेंट। स्टूडेंट्स को 2 चीजें चाहिए, एक तो क्लास चाहिए जो आपको पढ़ानी है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, और मैं आपसे अपील कर सकता हूं कि भाई स्टूडेंट की क्लास ठीक से होनी चाहिए, टाइम से होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए। शिकायतें आ रही हैं कि टीचर्स क्लास में नहीं आते, शिकायतें आ रही हैं कि टीचर्स पढ़ाते नहीं। फिर मुझे एग्जाम्पल दिया जाता है कि फला वाइस चांसलर तो क्लास में पहुंच जाता था। मैंने कहा भाई वो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो टीचर की डिग्निटी के साथ ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं सब टीचर से अपील करूं कि अपनी क्लास समय से, ठीक से, निष्ठा के साथ पढ़ाएं। और वो तरीके ठीक नहीं है कि वाइस चांसलर हेडमास्टर की तरह डंडा लेकर के घूमता रहे, वो ठीक नहीं है, वो स्टाइल ठीक नहीं है। दैट इज नॉट व्हाट आई बिलीव इन। लेकिन उससे ज्यादा जो चीज विश्वविद्यालय के लेवल पर हो सकती है वो है स्टूडेंट लीडरशिप डेवलपमेंट, स्टूडेंट लाइफ स्किल्स, स्टूडेंट प्लेग्राउंड्स, स्टूडेंट प्लेसमेंट, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, स्कॉलरशिप्स, कैरियर काउंसलिंग, इमोशनल काउंसलिंग, better healthcare, all of that. I think that is a big agenda and we have to work on that very, very systemically. खाने की बड़ी दिक्कत है। अभी मैं 2 दिन पहले, आपने शायद फेसबुक पर देखा होगा, मैं 2 दिन पहले पहुंच गया विश्वनाथ मंदिर पर, कोई बिहारी की चाय की दुकान है, तो समोसा खाने की इच्छा हुई तो पहुंच गया। तो कुछ छात्रों से बात हुई। अब उनकी समस्या ये है कि दिन में अगर वो यहाँ पर डे स्कॉलर्स हैं, उनको खाना खाना है तो कहाँ खाएंगे? और वो डे स्कॉलर की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो खुद खाना नहीं बनाना चाहते, उनका समय नहीं है। मेरे ख्याल से इस पर हमें काम करना पड़ेगा और हमें कई फूड आउटलेट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जहां पर मुनासिब पैसे में अच्छा खाना मिल पाए। मैं 2 बार लाइब्रेरी विजिट किया, दोनों बार मैंने डीके सिंह साहब से कहा, बैठे क्या? नहीं। डीके सिंह साहब दोनों बार कहा, मैंने कहा कि बच्चों को चाय की व्यवस्था तो होनी चाहिए, कुछ बिस्किट, चाय, समोसा टाइप का कुछ तो होना चाहिए। अगर लाइब्रेरी में दिन भर बैठेंगे तो होना चाहिए। मुझे बताया कि वहां पर एक कॉफी की शॉप है जो 20 रुपए की कॉफी देता है। मैंने कहा वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो विश्वनाथ टेम्पल पर जो चाय मिल रही है वो चाय यहां भी मिल सकती है। ये करना पड़ेगा हमको, अपने फूड आउटलेट्स को ठीक करना पड़ेगा हमको, अपने लोगों को सुविधा थोड़ी सी खाने की तो देनी पड़ेगी, टॉयलेट साफ करने के अलावा। टॉयलेट की बड़ी प्रॉब्लम है। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने पूछा कि कितने डिपार्टमेंट्स में, कितने फैकल्टी में, कितनी बिल्डिंग्स में विमेन टॉयलेट नहीं है, तो एक लिस्ट आई, इस बिल्डिंग में विमेन टॉयलेट है और इसमें नहीं है, यस और नो, यस और नो। तो उस पर मैंने अपने पेन से लिखा कि जो जो यस हैं, जहां जहां विमेन टॉयलेट हैं उस पर अब लिखें कि कौन कौन से फंक्शनल हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसमें कुछ में फर्नीचर स्टोरेज की तरह से यूज हो रहा होगा या जिसके पाइप क्लॉग हो गए होंगे। तो उसके बाद फिर लिस्ट आई कि इसमें ये नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, हमको ये सब ठीक करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रोवाइड अवर पीपल क्लीन हाइजीनिक एनवायरनमेंट एंड क्लीन फूड। कैनॉट एक्सपेक्ट एक्सेलेंस, यू कैनॉट, उसके अलावा नहीं चलेगा काम। हमको आईओई की जो स्कीम है 1000 करोड़ रुपए भारत सरकार दे रही है, हमारा खर्चा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हम सोचते बहुत हैं। वी आर सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस बाय एनालिसिस। सोचते रहेंगे, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग का भी नोटिस भेजेंगे, लिख के टाइप करके भेजेंगे। अरे फोन करके बुला लो सबको, बात करो यार, क्या दिक्कत है। उसके बाद मीटिंग होगी, उसके बाद उसके मिनट्स अप्रूव होंगे, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन भी होगा। अरे उसी पर पेन से लिख दो, नोटिफाइड, खत्म। नहीं, बहुत स्लो है। सो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को हमें स्केल करना है, खर्चा स्केल करना है। वी आर नॉट स्पेंडिंग इनफ मनी
एंड मैं बार बार कहता हूं कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी, ये पैसे खत्म हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे अगर हमने समय से इस्तेमाल नहीं किया। सो आईओए की और स्कीम्स बनानी है। एक तो बात चल रही है कि विजिटर्स, यहाँ पर खूब सारे स्कॉलर्स आने चाहिए, देश से विदेश से हमारे अच्छे स्कॉलर्स यहाँ पर आए, हफ्ता भर, 1 महीना, 3 महीना रहें, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाए, गेस्ट हाउस टाइप की, थोड़ा खाने की व्यवस्था हो जाए। मेरी उम्र में कोई व्यक्ति आएगा, उससे बोलो कि पनीर पराठा खाओ, नहीं खाएगा, उसको फुल्का चाहिए, तो साफ सुथरी दाल रोटी चावल का इंतजाम हो जाए उसका, तो लोग आएंगे यहाँ पर। तो वो करना है। दूसरा, हमको अपने पीएचडी स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को देश विदेश में कॉन्फ्रेंस आने के लिए एनकरेज करना है, ठीक है ना। अभी बहुत कम लोग हमारे ट्रैवल कर रहे हैं। मेरा इंप्रेशन है कि बीएचयू का जो टीचर है बहुत कम ट्रैवल कर रहा है। वी हैव टू इंक्रीज दैट। obviously we don't want Bharat Darshan and Dunya Darshan, but we want, I suppose we have enough people doing enough good work that they should be able to go out and share and learn in the process. I am suggesting कि भाई हमारे जो अच्छे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, टॉप पीएचडी स्टूडेंट्स, उनको 6 महीने के लिए भेज दो कहीं भी। फिजिक्स का कोई बहुत बढ़िया स्कॉलर है, उसको आप टीआईएफआर में 6 महीने के लिए भेज दीजिए, उसको आप आईएससी बैंगलोर में 6 महीने के लिए भेज दीजिए, उसकी परसेप्शन चेंज होगा, राइट। तो ये सब करना है। एक आइडिया, आज एक मैंने 3 यंग फैकल्टी को फोन किया। आज मैंने कहा भाई आज मुझे भाषण देना है और मुझे भाषण देना आता नहीं है, आइडियाज है नहीं, तो आप लोग आइडियाज दो। तो उनमें से एक फैकल्टी मेंबर ने कहा कि साहब मैं जब यूरोप में थी तो वहां पर मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग रिट्रीट होती थी, हम लोग कहीं जाकर के दूसरी जगह जाकर राइटिंग करते थे। तो बहुत बढ़िया आइडिया है। तो मैंने फिर हमारे जो आईओए की कोऑर्डिनेटर है संजय, इनसे कहा, मैंने कहा भाई एक स्कीम बनाओ कि हमारा कोई भी टीचर अपने 5, 7, 10 पीएचडी स्टूडेंट्स को, पोस्ट डॉक्स को लेकर के चला जाए। साउथ कैंपस में बहुत बढ़िया कैंपस है, मकान है बहुत बढ़िया, वहां बैठो 1 हफ्ता जाकर के, मैन्युस्क्रिप्ट पूरी करके लाओ, पेपर लिख के लाओ पूरे, ठीक है ना। इस बहाने प्रोग्रेस हो जाएगी, टीचिंग से दूर रहोगे, घर पे बच्चे परेशान नहीं करेंगे, हस्बैंड नहीं कहेगा कि भाई खाना ठीक से नहीं बनाए, बीवी नहीं कहेगी कि सब्जी नहीं आई है, घर की सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओगे, है ना। 1 हफ्ते के लिए काम करो जाकर के। तो इस तरह की स्कीम्स हमें बनानी चाहिए, आईओए को इस्तेमाल करना चाहिए। कंप्यूटर फैसिलिटीज बहुत कमजोर है हमारी लैब्स, कंप्यूटर लैब्स डिपार्टमेंट्स में काफी जर्जर हालत में है। लाइब्रेरी जब खुली तो शिकायत आई कि लड़कियां कैसे जाएंगी। लड़कियों के हॉस्टल में वी हैव टू क्रिएट फैसिलिटीज, जाके हर लड़कियों के हॉस्टल में जो कॉमन रूम्स हैं वहां पर हम एयर कंडीशन एनवायरनमेंट दे दें, थोड़े कंप्यूटर दे दें, तो लड़कियों को लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि लाइब्रेरी में जब मैं जाता हूं तो वहां मुझे बच्चे लाइब्रेरी की किताब के लिए नहीं बैठे हुए दिखते हैं, वहां पर मेज कुर्सी और एयर कंडीशनर के लिए दिखते हैं। तो मेज कुर्सी और एयर कंडीशनर मैं हॉस्टल में दे सकता हूं लड़कियों को, क्या दिक्कत है, वो करना है। स्पेस राशनलाइजेशन करना है। इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में थोड़ा हिलाना डुलाना पड़ेगा हम लोगों को एक दूसरे को। अभी भी मुझे बताया गया है कि हमने एक स्कीम शुरू की है जिसमें 1 से ज़्यादा फैकल्टी के लोग अगर मिल करके रिसर्च करना चाहेंगे तो 25 लाख रुपए शायद हम ऑफर कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला कि बहुत कम प्रपोजल आ रहे हैं, इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। अगर आपका म्यूजिक का प्रोफेसर है वो फिजिक्स या मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के साथ बात करे और ये कहे कि म्यूजिक की जो साउंड्स हैं इनकी फोरियर सीरीज एनालिसिस की जाए और इसकी एनालिसिस की जाए, या हमारे मेडिकल साइंस वालों से बात करें कि ये जो मंत्र हैं इनको उच्चारण करने से कैसे टेंशन कम होती है। मेरे ख्याल से कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन शुरू करना है, हॉस्टल बनाने हैं, सफाई रोड साइड की भी और बिल्डिंग्स की हालत बड़ी खराब है। जिस भी बिल्डिंग में मैं गया हूँ, आवर बिल्डिंग्स आर नॉट इन ए शेप दैट यू कैन ब्रिंग ए स्कॉलर फ्रॉम आउटसाइड। आई विल बी एम्बेरेस्ड टू कैरी ए सीनियर academic from elsewhere to a standard typical building. I am sure there are some really good buildings, but many buildings की situation बहुत खराब है। Law and order within the campus वो ठीक नहीं है। Yesterday मैंने पूछा रजिस्ट्रार साहब से कि हमारे यहाँ अच्छे टीचर्स को पढ़ाने के लिए कोई अवार्ड देते हो? बोले नहीं, हम नहीं देते। ये सब करना पड़ेगा, हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हमको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। हमारे जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, लोग ये सोचते हैं कि वाइस चांसलर अपने चमचों को दे देगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब मैंने गांधीनगर में शुरू किया तो मेरे जो साथी थे, रिटायर्ड प्रोफेसर थे दूसरी आईआईटी के, वो एकदम नाराज हो गए, बोले ये ठीक नहीं है, ये अवार्ड ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? घुमा फिरा के उन्होंने कहा कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, घुमा फिरा के। तो हमने उनसे डील की, हमने कहा डील ये है कि मैं उस कमेटी में नहीं रहूंगा,
आप मुझे हमारे यहाँ के जो टॉप 3 टीचर्स हैं उसमें से किसी का भी नाम दे दो, मैं शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन आपने चौथे को दे दिया, 3 को छोड़ दिया, तो फिर मैं आपकी रिकमेंडेशन रिजेक्ट कर दूंगा। और पिछले 12 साल से 10 साल से हमारा ये सिस्टम चला और कभी कभी किसी ने शिकायत नहीं की, किसी टीचर ने शिकायत नहीं की, किसी कमेटी मेंबर ने शिकायत नहीं की। अगर हम ईमानदारी से करें तो मेरे ख्याल से खूब अवार्ड्स होने चाहिए, खूब रिकॉग्निशन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इंटीग्रिटी चाहिए। वरना लगेगा कि जो हेड का आदमी है, जो डीन का आदमी है, जो डायरेक्टर का आदमी है, उसको अवार्ड मिल रहा है, वो ठीक नहीं है। ठीक कह रहा हूं? अब सवाल आता है कि ये तो मुझे काम करना है, मैंने बताया कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है ना। अब मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूं, है ना। तो पहली जो मेरी उम्मीद है वो है स्टूडेंट एंगेजमेंट। मैं चाहता हूं कि आज मेरी इस बात को आप सब लोग सोचें और विचार करें। हम लोग टीचर हैं, हम लोग यहां टीच करने के लिए आए हैं। हमारी पहली कमिटमेंट, हमारा पहला धर्म अपने स्टूडेंट के प्रति है। हमें क्लास भी अच्छी पढ़ानी है और क्लास के बाहर भी एंगेज करना है। मैंने जो बताया स्टूडेंट को हम एस्पिरेशन देंगे, मोटिवेशन देंगे, वो सब क्लास के बाहर आता है, वो अंदर नहीं आता। अगर मुझको पैशन हुआ अर्थक्वेक सेफ्टी का, वो पैशन क्लासरूम पढ़ने से नहीं हुआ, वो अपने टीचर्स के चरणों में बैठने से हुआ, राइट। वो हमको करना है। मुझे शिकायत आ रही है कि वार्डन्स हॉस्टल में जाते ही नहीं, कागज भी घर पर आते हैं साइन होने के लिए। हमें अपना एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, चाहे हमारे वार्डन्स हों, चाहे कोऑर्डिनेटर्स हों हॉस्टल के, चाहे हमारे डीन्स हों, जो भी हैं, हमें अपने आपको स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है और मैं आप सबसे अपील करूंगा। दूसरा है कि हम रिसर्च में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर ध्यान दें। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब हम क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस शेकी लगता है देखने में। वी शुड हैव कॉन्फिडेंस एंड वी शुड से हम 4 नहीं 2 ही पेपर छापेंगे, लेकिन दोनों अच्छे पेपर होंगे, अच्छे जर्नल में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि हम एक रिसर्च का एक इकोसिस्टम बनाएं। मैंने पूछा कितने साल पहले भटनागर अवार्ड मिला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, तो अब 30 साल में नहीं मिला। ये सब चेंज करना पड़ेगा, हमें एस्पिरेशन करनी पड़ेगी। मैं पूछा हमारे पिछले 10 साल में कितने पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हैं जो किसी आईआईटी में या जेएनयू में प्रोफेसर बने हैं, बहुत कम। सब ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए हमको अपनी रिसर्च को और अपने स्टूडेंट एंगेजमेंट को स्केल अप करना पड़ेगा, राइट। कमेटी वर्क, कई बार मैं कमेटी वर्क में देखता हूं कि सिग्नेचर होके आता है, मैं पूछता हूं कि भाई क्या है ये, तो पता है मुझे पता नहीं है, साइन कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। अगर आप कमेटी के मेंबर हैं और आपने साइन किया है तो पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, पूरा मसौदा समझा होना चाहिए। ये नहीं कि मेंबर सेक्रेटरी ने या चेयरमैन ने कुछ ड्राफ्ट बना दिया और आपने साइन कर दिया, ठीक है ना। कोई भी काम हो निष्ठा से करें। अगर हम अपनी निष्ठा से काम नहीं करेंगे तो हम अपने छात्रों को क्या सिखाएंगे, छात्राओं को क्या सिखाएंगे। ये भारत माता की जय है वाली बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं बहुत ही सिनिकल बात है ये, लेकिन उसके अलावा कोई इलाज नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा। बट सबसे ज्यादा जो मेरी एक्सपेक्टेशन है फैकल्टी से कि हमें विश्वविद्यालय का माहौल इंप्रूव करना है, कॉलेजियलिटी बढ़ानी है। झगड़ा बहुत है, बहुत लड़ाई झगड़ा है, और ये तो अध्यात्म की नगरी है बनारस, सब कुछ ऊपर, ये सब छोड़ जाना है, नश्वर है, शरीर बेकार है, फिर काहे का झगड़ा। क्यों प्रोफेसर गुप्ता, ठीक कह रहा हूं मैं, फिर काहे का झगड़ा। और यहां तो मोक्ष मिलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने एक ईमेल लिखी थी, उसमें 5 शब्द लिखे थे, कंसल्टेशन, इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉलेजियलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। काफी अभाव दिख रहा है मुझको। मैं अपील करूंगा आप सबसे और स्पेशली सीनियर लोगों से, क्योंकि जूनियर लोग जो सीनियर लोग करते हैं उन्हीं से सीखते हैं, कि हम थोड़ा सा टेम्परेचर विश्वविद्यालय का कम करें, थोड़ा मिलके काम करें, लड़ाई झगड़े कम, काम ज्यादा, चिट्ठी ना लिख करके फोन पे बात कर लें, मिल लें, एक कप चाय पी लें साथ में। चाय का बिल वाइस चांसलर ऑफिस भेज सकते हैं, रिम्बर्स हो जाएगा। हाँ? ट्रस्ट बढ़ाना है। फेवरेटिज्म, अभी भी शिकायत आ रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, कहीं भी हो, फेवरेटिज्म की शिकायत आ रही है थोड़ी।
वो ठीक नहीं। कौन किसका भतीजा है, कौन किसका चेला है, वो सब नहीं होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट हमें इज्जत नहीं करेंगे अगर वो देखेंगे कि हम फेवर करते हैं। हमारे स्टूडेंट हमें तभी इज्जत करेंगे जब वो देखते हैं कि हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं। ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा। और फाइनली जो मेरी लास्ट अपील है अपने सीनियर टीचर्स के साथ, यहां पर हमें यंगर लोगों को आगे करना पड़ेगा। जो हमारे यंग फैकल्टी हैं उनको कैसे आगे करें? मुझे पता है यूजीसी के सिस्टम में यंग टीचर से ज्यादा पढ़वाते हैं, सीनियर टीचर से कम पढ़वाते हैं। पर दुनिया की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मैं नहीं जानता जहां पर यंग टीचर ज्यादा पढ़ाता है, सीनियर टीचर कम पढ़ाता है। जब हम आईआईटी कानपुर ज्वाइन किए 4 टीचर्स थे ऑलरेडी, हम 5वें पहुंच गए। मीटिंग हुई स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में हमारे सब्जेक्ट में, तो एक हमारे सीनियर प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा सुधीर तो पहली बार पढ़ाएंगे, हम लोग 2-2 पढ़ाएंगे सब और ये 1 पढ़ाएंगे, और आप तय कर लीजिए क्या पढ़ाएंगे क्योंकि आप पहली बार पढ़ाएंगे। तो पूरे 1 साल तक हमको सिर्फ 1 कोर्स दिया गया और हमारे सीनियर्स ने 2-2 कोर्स पढ़ाए। प्रोफेसर एमपी कपूर उस समय जेई के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन थे, बहुत जिम्मेदारी थी। प्रोफेसर दयारत्नम उस समय डीन ऑफ रिसर्च थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। प्रोफेसर अश्विनी कुमार वाइस चेयरमैन जेई ऑर्गेनाइजिंग थे, राइट? बट even though they were doing lot of administrative work, even though they were full professors, but they were teaching double the courses that I was teaching. And that helped build my confidence in the system, that built my trust in the system, that built my respect for them. Today I feel that I am what I am because of them. Let us not be in a situation where a young faculty will say, I am here despite them. Or in spite of them, right? Let us encourage our young faculty. Let us rethink how can we encourage them? How can we make them go up? Because we can take pride. If our faculty members do well, we will take pride. If I'm a professor or a dean or a head and my younger colleague gets an award, I will take some credit. ठीक है ना? इसके ऊपर मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इसमें कुछ करें। ज्यादा लंबा भाषण नहीं करना चाहता हूं, कुछ फाइनल कुछ कमेंट्स करना चाहूंगा। विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर तो 3 साल के लिए आता है, स्टूडेंट्स 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए आता है, लेकिन टीचर यहां 30 साल, 35 साल रहता है। टीचर इज द बैकबोन ऑफ ए यूनिवर्सिटी। टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर in maintaining the culture, the values, and take university where it has to go. Not the vice chancellor, not the students, not the staff. You have a very, very big role, you have a very big responsibility. Don't expect that I will do anything. I expect all of you to do something and I should be a facilitator and a coordinator. Right? आज मैंने एक प्रोफेसर साहब को फोन किया, नाम नहीं लूंगा, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत है? बोले साहब दिक्कतें तो हैं, कभी आपसे टाइम मिल जाता तो अच्छा रहता। मैंने कहा आए क्यों नहीं? बोले मुझे बताया कि आप बहुत बिजी रहते हैं। यार पूछा कभी आपने? नहीं पूछा नहीं। तो फिर ये क्यों मान लिया? आप इतना महत्वपूर्ण काम विश्वविद्यालय का कर रहे हैं और आपके लिए मैं टाइम नहीं दूंगा तो शेम ऑन मी। ठीक है ना? आप अगर जिम्मेदारी से अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको बढ़ावा देने का काम मेरा है, आपको एनकरेज करने का, आपको एम्पावर करने का काम मेरा है, लेकिन काम तो आपको करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं यहां पर सिर्फ 3 साल के लिए आया हूं, विश्वविद्यालय आपका है। ये बात मैं चाहता हूं कि बिल्कुल हम लोग सोचें इसके बारे में, और हर टीचर बीएचयू का ये सोचे कि अगर बीएचयू को उसके सही जगह पर सही क्रेडिट दिलवानी है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस चांसलर से 10 गुना ज्यादा या 100 गुना ज्यादा है। वाइस चांसलर तो 3 साल निकाल के चला जाएगा, आप यहां बैठे रहोगे। ठीक है ना? तो एक तो मेरी ये वो है कि यू शुड बी ए पार्टनर इन द चेंज एंड यू शुड हेल्प इंप्रूव द इकोसिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी। अपनी पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, क्लास भी पढ़ा रहे हैं, हम पेपर भी छाप रहे हैं, रिसर्च भी अच्छी कर रहे हैं, इतना काफी नहीं है। विश्वविद्यालय का माहौल इंप्रूव करना है, उस माहौल को इंप्रूव करने के लिए आप सबका पूरा सहयोग चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है ना?
मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है बीएचयू में, बहुत हम अचीव कर सकते हैं। सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, सिर्फ हमको एस्पिरेशन चाहिए, हमें बिलीफ चाहिए, हमें ट्रस्ट चाहिए, बाकी हमारे पास सब कुछ है। आपके यहाँ के कई फैकल्टी मेंबर्स के बायोडाटा मैंने गांधीनगर में भेजे, मैंने कहा देखो जरा बताओ मुझे, एंड दे वर सरप्राइज्ड कि कितने लिमिटेड रिसोर्सेज में कितना अच्छा काम उन लोगों ने किया है। बहुत पोटेंशियल है बीएचयू में, लेकिन वो दबा हुआ है, वो आग है, उसके ऊपर राख पड़ी हुई है, उस राख को हटाना पड़ेगा, चिंगारी को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा कमिटमेंट यह है कि जो भी हम टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए कर सकेंगे करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ सकता अगर हमारा टीचर खुश नहीं है, हमारा स्टूडेंट खुश नहीं है, हमारा स्टाफ खुश नहीं है। जो भी संभव होगा, जो संभव नहीं है वो नहीं है, लेकिन जो भी हो सकता है वो करेंगे, निष्ठा के साथ काम करेंगे, बीएचयू के हित में काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि रूल्स को लिबरलाइज करेंगे, लेकिन एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट करेंगे। जहां जहां सख्त रूल है आप लिख दीजिए, मुझे लिख दीजिए, रजिस्ट्रार को लिख दीजिए, कंट्रोल ऑफ एग्जाम को लिख दीजिए, फाइनेंस ऑफिसर को लिख दीजिए, और भी जितने पदाधिकारियां हैं उनको लिखिए, मुझे कॉपी कर दीजिए। कोई भी आपके पास आइडिया है या रूल को लिबरलाइज करना है, मैं करूंगा, लेकिन रूल तोड़ने के लिए मुझसे मत कहिए। ये मत कहिए कि ये मैं स्पेशल स्टूडेंट को लाया हूं इसके लिए रूल तोड़ दीजिए, वो संभव नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। और फाइनली आई वुड से कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहूंगा। मेरे टाइम में मैं चाहूंगा हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्टाफ के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएं जो उनके लिए लाभान्वित हों। यहां मैडम सुमन जैन बैठी हैं, अभी कितने 26 लोगों को लेकर गए थे, कितने लोगों को लेकर थे 26। अब ये 26 लोगों को गुजरात लेकर के गई, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इनके सामने मैंने स्पीकर फोन पर वहां के ब्यूरोक्रेट को फोन किया, मैंने कहा हवाई जहाज का टिकट देना है, बोला दे देंगे। मैंने कहा तेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको हवाई जहाज से भेजूं कि ट्रेन से भेजूं, बोला आप जो चाहें। मैंने कहा हवाई जहाज से भेजूंगा, बोले हाँ हवाई जहाज से भेजिए। I would like to create those opportunities. That is what I am good at. Please see if you can to use me well. मेरा वही समय किसी ब्यूरोक्रेट को फोन करके 26 बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए एयर टिकट में भी जा सकता है, और वही समय डिसिप्लिनरी एक्शन की फाइल्स में भी जा सकता है। मैं चाहता हूं डिसिप्लिनरी एक्शन की फाइल्स न बने, यहां पर कोई गंदे काम ना हो, ईमानदारी और निष्ठा से हम काम करें, और लेट अस ट्राई एंड सी कि हम लोग इस लायक बने कि महामना की लीगेसी के हम अपने आप को काबिल समझें। क्योंकि हम लोग महामना के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी जो परिकल्पना थी, उनकी जो इरादे थे, हम क्या उसके लायक बने हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वहां तक पहुंच सकें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। One is how do you measure quality? I personally prefer to measure quality by output. For example, in IIT Gandhinagar, when a young faculty came for a promotion, typically in any IIT, and I'm sure in BHU, in the application form you say, I have guided 5 PhDs. I have guided 7 PhDs. You say that. And I published these papers. Now, in IIT Gandhinagar, that was not enough. You had to say, you guided 5 PhDs, and where are those 5 PhDs now? So, you guided 5 PhDs, 3 of them are teaching in another IIT, 2 of them are in industry, and somebody else has guided 15 PhDs. Out of those, 10 are in private colleges, and 5 of them are unemployed. First one will get the promotion, not the second one. ठीक है ना? Simple. For MTech, obviously that criteria cannot work. So in MTech we said, how many MTech theses have been published in scholarly journals? Because MTech was a 1 semester project. Now, if you are able to say 30% of my MTech students are publishing in journals, that's very good.
MSc, how many MSc thesis? MSc, 2-year MSc, there is a part-time research component. So if you are guiding 20 MSc thesis over last 5 years, how many of the MSc students are co-authors of papers in decent journals? Things like that, right? Those are the kind of criteria that we assessed. We kept notice that how many of our electrical engineering PhDs are able to get job in IITs. How many civil engineering students are getting job in IITs? We measured our performance at IIT Gandhinagar based on where our PhD students are. And I said, we must have a target that 15% of our PhD students from IIT Gandhinagar will be teachers in IIT or equivalent institutions. That's how I like to measure. If I have to evaluate IIT Kanpur, IIT Bombay, IIT Madras, I will say, how many of you got Bhatnagar Award? I would not worry about how many papers you published. To me, that is a quantity issue. But I want to measure performance based on certain excellence benchmarks. And I know what I'm describing is a new in most environments in India, because every time I mentioned, people were very pleasantly surprised that this is the kind of criteria we had, but that is the way we had. So I will let faculty members here decide what is the criteria they want to have. Because as I said, I'm here only for 3 years. You have to decide what is your expectation, what is your measure. My thought is we can measure ourselves based on how well our students are doing. The second thing was zero tolerance on ethical misconduct in research. I think उसमें कोई negotiation नहीं होना चाहिए, उसमें कोई discussion की ज़रूरत नहीं है. In academic institutions, misconduct and ethical violations have no place, and we should be very, very clear about that. Right? The student discipline, same thing. I would say student discipline can be broken into 2 pieces. One is where जिसके बारे में कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होगा कि ये गलत काम था, और दूसरा वो है जिसमें सोसाइटी के दृष्टिकोण से कहीं पर ठीक हो सकता है, कहीं पर गलत हो सकता है. दोनों तरीके हो सकते हैं. ठीक है ना? एक स्टूडेंट ने जूता पहने हुए आगे मेज पर कुर्सी बैठ करके अगली कुर्सी पर पैर रख के क्लास पढ़ रहा है. वो BHU में इनडिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन मिशिगन में वो इनडिसिप्लिन नहीं है. ठीक है ना? वहां पर हम थोड़ा लीनियंट हों तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन दूसरे स्टूडेंट को पीटा है, इसमें कोई डाउट नहीं है मिशिगन में भी और BHU में भी कि दूसरे स्टूडेंट को पीटना या किसी लड़की को परेशान करना या एग्जाम में बेईमानी करना या थीसिस में नकल करना, इसमें कोई कहीं शुबा गुंजाइश नहीं है. मेरे ख्याल से उसमें हमें सख्ती करनी चाहिए. ठीक है ना? लड़का या लड़की रात को 10 बजे हॉस्टल में नहीं आया, 11 बजे आ गया, इसमें डाउट हो सकता है क्योंकि मिशिगन में अलाउ है, आपके अलाउ नहीं है, वो मैं लीनियंट हो सकता हूं. लेकिन एक दूसरे को तंग करना अलाउ नहीं होना चाहिए. बायोमेट्रिक अटेंडेंस, I would not like university to do a police baji at a central level. I would not like us to become like a military academy. But I would encourage our directors, deans and heads to take responsibility. And where appropriate, they can decide to do biometric, I will support them. Let me explain you how it works. IIT Gandhinagar में क्लास 1 ऑफिसर्स थे करीब 10, टोटल 10 एक टाइम पर. मुझे शिकायत आई कि उसमें 2 या 3 लोग हैं जो लेट आते हैं और जल्दी जाते हैं, काम हम नहीं करते. So I called my registrar and I said, look, this is what I am hearing as a complaint. He said, yes, it is correct. I said, please have a meeting of all 10 officers, tell them that you have a choice, either you mend your ways or we all will go into biometric. And everybody said we will mend our ways, and problem was resolved. Because nobody likes to be policed. My suggestion is that if there are certain departments where there is a problem, teachers don't show up, I would like heads and deans to have a discussion and say, भाई इसको ठीक करो, नहीं तो हमें बायोमेट्रिक करना पड़ेगा. और करना चाहिए, अगर जरूरत हो तो करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन मैं नहीं चाहता कि 4 लोगों के वायलेशन की वजह से हम पूरे विश्वविद्यालय में
मिलिट्री एकेडमी का माहौल बना दें, वो मैं नहीं ठीक समझता। ये एंटीबायोटिक है, जरूरत हो तो लेना चाहिए, पर बिना बात एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्यों गुप्ता साहब, परमिशन एंटीबायोटिक यूज करने की? हाँ। डिले इन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन, आई टोटली एग्री, एंड आई एम ऑफरिंग टू ऑल ऑफ यू, इफ देयर इज ए प्रॉब्लम, your paper is getting delayed, send an email to me. I will personally do babugiri as much as you want me to, and I will see if I can help you resolve. But don't do this that you don't explore other options. First you explore other option, and if it doesn't work, send me an email and we will see what we can do. But we have to improve our system, and I will need help in doing that. And finally, assistant professors in administration. I would love to have assistant professors work with me directly. I would like to give them responsibilities. I am a great believer in the youth. Okay? If you go to IIT Gandhinagar today, there is a young assistant professor who is the chairman of the faculty search committee and is the associate dean of faculty recruitment. All recruitment is managed always at IIT Gandhinagar by an assistant professor, entry level, 1 year old, does this for a year, 2 years, and then new assistant professor, 1 year old बकरा है, उसको पकड़ के काट देते हैं, ठीक है ना? Because I think young people are very capable. We older generation underestimate young people. This civilization has grown because new generation has been better than the old generation. That's how the world civilization has grown. डार्विन का सिद्धांत है, कोई है यहाँ पर डार्विन के एक्सपर्ट होंगे बहुत सारे, है ना? इवोल्यूशन होता है ना, तो नए लोग तो हमसे बेटर ही होंगे ना, तो उनकी कैपेबिलिटी को हम अंडरएस्टिमेट इसलिए करते हैं कि हमारी आदत है उनको बच्चे की तरह ट्रीट करने की. We should stop doing that. We should treat them as adults, give them responsibility, and they will fly. So I would like any enthusiastic assistant professors to send me an email, tell me what they are good at, and let me see where I can use them. All right? Any other questions? If I missed, please tell me. Staff welfare. क्या करना है बताओ? Promotion. देखिए promotion में देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जो भी मेरी हैसियत में होगा करूंगा. अब आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है, लिफाफे नहीं खुल सकते तो नहीं खुल सकते, वो बनाना मेरा काम नहीं है, वो किसी और का काम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें मैं अपना दिमाग तोड़ने के मैं विश्वास नहीं करता, ठीक है ना? जो मेरे से काम हो सकता है मुझे बताएं, अगर मुझसे हो सकता है तो मैं जरूर करूँ. वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा, ये थोड़े लिफाफे बंद रहेंगे, ठीक है ना? और कुछ है? सॉरी, क्या 5-day week? I will go by what is the collective wisdom. I am told that Banaras Hindu University had tried to go to 5-day week. It didn't work. The vice chancellor who made it 5-day week is the same vice chancellor who brought it back to 6-day week. If you want me to do that, I can do that. Make you 5-day week, and after 6 months or 1 year, you will complain to me saying कि अब तो काम और भी नहीं हो रहा, अभी तो काम नहीं हो रहा 6 दिन में, फिर कहोगे 5 दिन में और भी नहीं हो रहा, तो फिर आप मुझसे कहोगे कि अब 6 दिन करो. आप देख लो जैसा आप कहोगे. चलो और बताओ. CGHS में मेडिकल वाले इशू में काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे होगा. अगर हो सकता है तो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं. I am for it. I don't know how much is within my means. I don't know that, right? But if it can be done, nothing like it. स्पोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए. साहब को अभी कितना 2.5 करोड़ रुपए, साहब को भी 2.5 करोड़ रुपए अप्रूव किए. स्पोर्ट्स फैसिलिटी इंप्रूव करनी है. आप सबको सुबह को मैदान में दौड़ने के लिए मौका मिलेगा. देखते हैं कितने लोग दौड़ेंगे. चलो, एनीथिंग एल्स? Thank you very much, ladies and gentlemen. Delighted to be here with you. Thank you.